Assalamu alaikum dear students. My name is Kashif Ibrahim, and in today's video we are going to see that how we can download XAMPP web server to work on localhost, and how we can install WordPress on it. So first of all, we have to open browser and download XAMPP server. You can just write there XAMPP and download. The first link being given by the Google, that is download XAMPP Apache Friends. Click on it. You have a number of options over there. If your operating system is 64-bit operating system, then you can download from here. Otherwise, you can click. If your computer is having Windows XP or 2003 or 32-bit operating system of Windows, then you can click on this link. It will give you options to download 32-bit installer of XAMPP web server. So you can download from here. I have already downloaded, that's why I'm not downloading it. Then after this we have to download WordPress installer. I have told you about WordPress. We have two options of WordPress. One is wordpress.com and another one is wordpress.org. We have to go to wordpress.org. The difference between wordpress.org and wordpress.com I have already told you in face-to-face class. That's why I don't want to go in detail. From this wordpress.org we have to download WordPress installer. You can click on it. It will give you this page, and from here you have to click on this button, download WordPress 6.0.2. right? When you click on this, it will start downloading WordPress installer. So both of these files, just to save time, I have already downloaded, and these are here. WordPress 6.02. This is a zip file which has to be extracted, and this is XAMPP window 64-bit, because my operating system is 64-bit. According to your operating system installed on your computer, you can download 64-bit installer or 32-bit installer, as I have already told you. So after downloading both of these files, you have to first install XAMPP. Double click on it. Give the permission to install. Now it is saying that it seems you have an antivirus running. In some cases this may slow down or interfere the installation. Continue with installation. Click here, and here also you have to click on OK. Then it will give you the wizard setup. Click on next, then next, and you had better install your XAMPP web server on D drive, or on the drive where you don't have your operating system installed. So I am installing it on D. On the root of D drive, it will make a XAMPP folder, and there it will install XAMPP files. Click next, next, and here we can uncheck it. Learn more about Bitnami for XAMPP, and then next. Now it has started installing XAMPP server. Hopefully it will take 2 minutes, 1 or 2 minutes. It's creating an installer. Okay, now it is installed. Completing the XAMPP setup wizard. Setup has finished installing XAMPP on your computer. Do you want to start the control panel? Not right now. We will uncheck it and then finish it. After this, what we need to do, we have to copy this WordPress zip file, and then we will go to D drive. Now on D drive, XAMPP folder is already created where we have installed our XAMPP web server. There we will go to htdocs folder.
and here we will create a folder for our website. ठीक है, name the folder according to the name of the website. For example, I want to make a testing website. Right click here, right? So I name it testing, and inside this testing website I paste my WordPress zip file. Okay, now I'm going to extract it here. Right click on it and extract to WordPress 6.02 folder. So what it will do, it will create a WordPress folder, and inside that folder another folder will be there, and there it will install a WordPress. It will extract WordPress files. Now you can see a folder has been created, and inside this folder we have another folder of WordPress, and there we have extracted files. These files are to be copied, or you can cut it and go back to testing folder. ठीक है, अभी हम टेस्टिंग फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस के फोल्डर में है, वर्डप्रेस के अंदर एक और वर्डप्रेस का फोल्डर बना हुआ है और वहां पर ये फाइलें हैं। ठीक है, इनको मैंने कट किया है, मैं वापस आ रहा हूँ टेस्टिंग पे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जब ये पेस्ट हो गई तो वो जो जिप फाइल थी वर्डप्रेस की वो हमारे काम की नहीं है। इसी तरीके से जहाँ पर हमने ये एक्सट्रैक्ट किया था वर्डप्रेस 6.02, ये भी हमारे काम का नहीं है। ठीक हो गया। नाउ हमने क्या किया है कि जैम के ऊपर, जैम के अंदर htdocs में हमने अपनी वेबसाइट का फोल्डर बनाया था और उसके अंदर हमने ये वर्डप्रेस की सारी फाइलें कॉपी कर दी हैं। अभी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया है, ये अभी इंस्टॉल होगा, और उससे पहले हमने एक और काम करना है, हमने डेटाबेस भी क्रिएट करनी है जो जैम का सर्वर है उसको रन करके। तो जैम का सर्वर अब हम रन करने जा रहे हैं, उसके लिए हम ढूंढेंगे जो हमने इंस्टॉल किया था जैम, सर्च कर लें या फिर आपके पास यहाँ प्रोग्राम्स में मौजूद होगा जैम कंट्रोल पैनल, इसको रन कीजिए। एक से ज़्यादा जो है वो इसके इंस्टेंस रन हो रहे हैं। It's giving some error message. Okay, let me close it and I run it again. एरर आ रहा है कुछ, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। ये रन कर लिया मैंने, और यहाँ पर ये जो जैम का कंट्रोल पैनल है इसमें अपाची एंड माई एसक्यूएल, इसको मैंने स्टार्ट कर देना है। जब भी आप लोकल होस्ट वेब सर्वर पे काम करेंगे, आपने इन दोनों को आपने स्टार्ट कर देना है सर्विसेज को, माई एसक्यूएल एंड अपाची। उसके बाद आप लोकल होस्ट पे काम कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अभी हमने स्टार्ट करने के बाद वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसके बाद हम जा सकते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, और ब्राउज़र पे जाके जब हम लोकल होस्ट लिखेंगे तो इसका ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर ये आ गया है तो इसका मतलब है कि लोकल होस्ट काम कर रहा है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट लोकल होस्ट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट इन फेस टू फेस लेसन, और मैंने आपको बताया था कि जब हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं या वेबसाइट डेवलप करते हैं तो हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, दो तीन चीज़ें। एक तो ये है कि हमें वो कंप्यूटर चाहिए होता है, वो सर्वर चाहिए होता है मेन, जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को रख सकें, वो वेब सर्वर कहलाता है, और वो वेब सर्वर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। और फिर हमें अपनी वेबसाइट का एक नाम चाहिए होता है जिसको हम डोमेन कहते हैं, जिस डोमेन के थ्रू जो है वो लोग जो है हमारी वेबसाइट को रिट्रीव करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो जब हम अगर हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो लोकल होस्ट का मतलब ये है कि हम अपने ही कंप्यूटर को जो है एज ए वेब सर्वर यूज़ कर रहे होते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। और वेबसाइट डेवलप करके अगर हम चाहें बाद में तो फिर हम होस्टिंग जो है वो हम किसी होस्टिंग कंपनी से ले सकते हैं, उस कंप्यूटर के ऊपर जगह ले सकते हैं जो कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, वहाँ पर रखवा सकते हैं। तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, और लोकल होस्ट पे काम करने का फ़ायदा ये है कि आप ऑब्वियसली ये फ्री है, आपका अपना कंप्यूटर है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं होगा। नोबडी कैन डाउनलोड योर वेबसाइट ऑन हिज कंप्यूटर। आप सिर्फ जिस लोकल होस्ट कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं
उसी पे ही अपनी वेबसाइट को भी देख सकते हैं। तो ये अभी हमने लोकल होस्ट इंस्टॉल किया है, तो ये इसका डैशबोर्ड है। और अब इसके बाद हमने ये करना है कि वी हैव टू क्रिएट द डेटाबेस। वी हैव टू क्लिक ऑन PHP माई एडमिन। जो 32 बिट का जो इंस्टॉलर है जैम का, उसका थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पर भी काम यही होगा होपफुली। अगर आपका कंप्यूटर जो है वो 64 बिट है तो आप 64 बिट इंस्टॉल करें, ताकि वो ऑप्टिमम लेवल के ऊपर जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो काम कर सके। ठीक है, मैंने PHP माई एडमिन पे क्लिक किया है। हियर आई हैव टू क्रिएट द डेटाबेस। डेटाबेस नेम शुड बी द सेम एज आई हैव केप्ट द वेबसाइट नेम। तो वेबसाइट जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसका नाम मैंने टेस्टिंग रखा है, और मैं इसको यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्रिएट हो गई टेस्टिंग की डेटाबेस। अब इसके बाद मैं चाहूँ तो इसको क्लोज भी कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं लोकल होस्ट लिखता हूँ, लोकल होस्ट और फिर स्लैश, और मैं अपनी वेबसाइट का नाम रखता हूँ टेस्टिंग। एंटर करूँगा। फर्स्ट टाइम अभी ये चल रही है, तो अभी ये मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगी, क्योंकि अभी मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम में पूछेगी। नेक्स्ट टाइम में जब मैं लोकल होस्ट स्लैश टेस्टिंग लिखूँगा तो ये मुझे वेबसाइट का रिजल्ट दिखाएगी जो मैंने डेवलप किया है। और अगर जब मुझे वेबसाइट को डेवलप करना होगा तो मैं लोकल होस्ट स्लैश टेस्टिंग स्लैश WP-admin लिखूँगा, तो वहाँ पर वो मुझसे ID और पासवर्ड मांगेंगे, और फिर मैं इसके जो बैक पैनल है उस पर जाके अपनी वेबसाइट को चेंज कर सकता हूँ। राइट, अभी ये फर्स्ट टाइम है, तो ये मैंने जैसे ही टेस्टिंग लिखा तो ये मुझसे लैंग्वेज पूछ रहा है। मैं कंटिन्यू करूँगा यहाँ पर, और उसके बाद वो मुझसे कहता है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स: डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, database host, table prefix. Here I have already created database and I know the name of the database, that is testing. और जो डेटाबेस का यूज़र नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो रूट है, और पासवर्ड जो है वो कुछ नहीं है। बाकी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन क्लिक ऑन लेट्स गो। ठीक है, डेटाबेस नेम टेस्टिंग जो मैंने अभी क्रिएट किया था माई PHP एडमिन में, यूज़र नेम रूट, नो पासवर्ड, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। ठीक है जी। All right, Sparky, you have made it through this part of the installation. WordPress can now communicate with your database if you are ready. Time now to run the installation. So now we are going to install. ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछ रहा है। वेबसाइट का टाइटल क्या है, तो हम टेस्टिंग वेबसाइट ही बना रहे हैं। यूज़र नेम जो है वो मैं एडमिन रख लेता हूँ फ़िलहाल। ये वो एडमिन है जो ये वो यूज़र नेम और पासवर्ड है। यहाँ पर पासवर्ड भी देना है कि जब मैं अपनी वेबसाइट को चेंज करना चाहूँगा। देखिए ये सारा जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ये बार बार नहीं करना है हमने, क्योंकि जैम्प एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाएगा और आपने डेटाबेस भी एक दफ़ा क्रिएट करनी है, वर्डप्रेस भी एक ही दफ़ा इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट टाइम जब हम अपनी वेबसाइट को डेवलप कर रहे होंगे तो हमें एक जो यूज़र नेम है और पासवर्ड चाहिए, ताकि हम अपने जो वर्डप्रेस के बैक पैनल पर जाके वेबसाइट को बना सकें। और बाकी जो जब उसका रिजल्ट देखना होगा तो हम सिंपल लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश और टेस्टिंग, जो भी वेबसाइट का नाम है। आप अपनी वेबसाइट जो बनाने जा रहे हैं उसका नाम जो आप रखेंगे उसके मुताबिक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं पासवर्ड सिंपल रख रहा हूँ क्योंकि नो बडी इज़ गोइंग टू यूज़ माई कंप्यूटर, आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ यूजिंग इट, सो मैं इसका एडमिन ही रख लेता हूँ। और चूँकि पासवर्ड वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो यू विल नीड दिस पासवर्ड टू लॉग इन, प्लीज़ स्टोर इट इन अ सिक्योर लोकेशन। जाहिर सी बात है आप किसी और को नहीं बताएंगे। और मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ, कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड जो है बहुत ही आसान है, आप कुछ और भी बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यूर ईमेल, ये ईमेल वो है जो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो आपका पासवर्ड वो भेज देगा। डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग, जाहिर सी बात है आप नहीं चाहते कि सर्च इंजन जो गूगल का है या जो भी सर्च इंजन है वहाँ पर आपकी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स हो, उसके पेज पे आए, तो ज़रूरत नहीं है इसकी। तो हम इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे डिस्करेज। इंस्टॉल वर्डप्रेस, इट हैज़ स्टार्टेड होपफुली।
Okay, it is asking me to save the password. You can save it if you like, otherwise you can remember it yourself. Okay, WordPress has been installed, thank you and enjoy. यूजर admin है और पासवर्ड जो है जो हमने रखा था यहाँ पर, मैंने एडमिन रखा था, आप अपना कुछ भी रख लीजिए। लॉगिन। अच्छा, अब देखें, ये हमारा काम हो चुका है। अब करना क्या है, नेक्स्ट टाइम लेट्स सपोज आप कंप्यूटर क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और आपका कंप्यूटर बिल्कुल ऑफ हो गया है, ठीक है, आपने कंप्यूटर अभी भी ऑन किया है, आप अपनी वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं। तो अगर मैं अभी जाके यहाँ पर आपका जो ब्राउज़र है वहाँ पर लोकल होस्ट लिखता हूँ, तो देखें अभी कुछ भी नहीं आएगा, एरर देगा, क्योंकि मैंने सर्वर को रन नहीं किया हुआ। तो करना क्या है, मैंने जो सर्वर है, तो कंप्यूटर में थोड़ा सा मुझे एरर आ रहा है, तो आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा होपफुली। आपने जैम का सर्वर रन करना है, ठीक है, और वहाँ पर जो जो अपाची और माई एसक्यूएल की सर्विस है उसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ से ढूंढ लीजिए, चाहे तो जैम का सर्वर मिल जाएगा और उसको फिर रन कर लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी रन हो रहा है, तो मैं ये स्टार्ट इन दोनों को कर देता हूँ। जब मैं इन दोनों को स्टार्ट करूँगा तो मेरा मेरा लोकल होस्ट जो है वो एक्टिव हो गया है। वेब लोकल होस्ट यानी होस्ट जहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट रख रहा हूँ। लोकल क्या है, लोकल चूँकि मेरा अपना कंप्यूटर है तो इसको हम लोकल कह रहे हैं, लोकल होस्ट। अदरवाइज जो होस्टिंग कंपनीज होती हैं वो भी यही काम कर रही होती हैं, वो अपने कंप्यूटर पे अपना आपका जो जो आपकी जो वेबसाइट है उसको वो होस्ट कर रही होती है। तो इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें इसका रिजल्ट आ रहा है, ये इसका डैशबोर्ड देना है। मुझे ये डैशबोर्ड नहीं चाहिए, मुझे अपनी वेबसाइट पे जाकर, क्योंकि यहाँ का तो जो काम था माई PHP एडमिन वगैरह को मैं कर चुका हूँ, बाकी मुझे इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लोकल होस्ट लिखना है और मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। अगर सिर्फ मैं अपनी वेबसाइट को देखना चाहता हूँ तो ये देखें, चूँकि वर्डप्रेस जस्ट इंस्टॉल हुआ था तो ये उसका पेज आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। और अगर आप अपनी वेबसाइट को मतलब ये कि उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, तो आपने इसके आगे लिखना है wp-admin, क्योंकि आप एडमिन पैनल पे जाना चाहते हैं, बैक पैनल पे जाना चाहते हैं, बिहाइंड द वेबसाइट जाना चाहते हैं, जहां पर आप अपनी वेबसाइट को चेंज कर सकें। जब मैं ये करता हूं तो ये मुझसे अब आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है और मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा। तो जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, जो बैक पैनल है वो आ जाएगा इस तरह से, और ये स्क्रीन आ रही होगी आपके पास। ये देख लीजिए, यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को बना रहे होते हैं, ठीक है। और इसका रिज़ल्ट जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रिज़ल्ट है इस वक्त, यानी जो आप वेबसाइट बनाएंगे, अगर कोई और देखता है तो ये इस किस्म का रिज़ल्ट आ रहा होगा। अभी तो बहुत सिंपल है, जाहिर सी बात है, इसको हमने चेंज करना है। तो ये है, जब आप अपनी वेबसाइट बना चुकेंगे तो आपने यहाँ से लॉग आउट करना है और ये लॉग आउट होकर वापस स्क्रीन ये आ जाएगी। जब आप काम ख़त्म कर लें अपना तो ये इसको स्टॉप कर दें, ये आपका लोकल होस्ट जो है वो स्टॉप हो गया, ठीक हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँ तो ये देखें, यहाँ पर ये होपफुली एरर देगा, यहाँ पर भी ये एरर देगा, ठीक है जी। दिस साइट कैन नॉट बी रीच, क्योंकि आपका लोकल होस्ट जो है वो एक्टिव नहीं है। तो आज का जो वीडियो था वो सिर्फ ये था कि आप किस तरीके से लोकल होस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं जैम के थ्रू, और उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से बैक पैनल में मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। होपफुली आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। Until next time, Allah Hafiz.